Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we have started the next topic, that is from fibers to wool. What we are starting now? Fibers to wool. What is our motto? No do rectification. Just we will, what we have to do? We will understand the topic. No ratta. Okay, this is our motto. Now, from fiber to wool. How fibers are converted into wool? We will learn the process. See, wool. For obtaining wool, what we are reared? हम किसको rearing करते हैं, पालते हैं? Sheep. Now, student, this sheep, goat, they are reared for main the purpose is to obtain wool, but side by side the other thing we will obtain, that is they give us milk also, and their milk is very good. See, goat milk is very important in some disease also, and sheep also. Sheep. Now third is they are the purpose is of meat also. We will obtain meat from this goat also. Goat, sheep, they are reared for. So we will get three benefit from this rearing of sheep and goat. So we will, one main purpose is to obtain wool. Second is to obtain milk also, and third is the meat also. Now we will see, students, here that you will find these what happened, these the qualities. Rearing and breeding of sheep is very important. If the sheep rearing, हम rear कर पालते हैं, breeding उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे सपोज़ हमारे पास 2 sheep थी, 2 के बाद हमारे पास 4 हो गई, 5 10 हो गई धीरे धीरे. तो what are these are we are doing the breeding. So rearing and breeding we will have to take care. Now what happens, students, we have seen that these ships you will see in mostly hilly areas when you are moving. जब हम hilly areas पे travel करते हैं, then you can see there are different persons you will find on the hilly areas. They are sheep. What we call that persons? They are grazing the sheep. They are called shepherds. What we call them? Shepherds. चराहा, जो भेड़ों को चराते हैं. और herds of sheep मतलब sheep का झुंड मिलता है आपको. सो वेर यू विल फाइंड ऑल द, जैसे शीप्स के बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियों के आपको झुंड मिलते हैं जो चराने के लिए लेके जाते हैं. तो कहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर आप ये देखोगे, यू विल सी ऑन द हिली एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, ऑल दिस स्टेट्स you will find. Now this is because one, they will get three benefit from this one. Second, they have less land area also, less land area. Then what will they will start this business also, so they will get income from this small business they are doing. Now, so less land area and in a short area they can start this one, rearing and breeding of sheep. And from this one, for making wool we need the fibers of this sheep. So when they will sell, they will get good benefit, yeah, good income of this one. Now see, grazing sheep, you know, sheep are what? Herbivores. What is herbivore, students? Which eat mainly, which depends upon plants and plants product. जो चीज़ें प्लांट या प्लांट किससे बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स. हैव यू लिसन द नेम? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, which eat the flesh of other animals. They are called carnivores. And omnivores, which eat both plant and plant products as well as animals also. So they are called, students, what we call them? Omnivores. Like wool, like bear. Okay, so this is the bear, cat, dog, they eat both, like human being also. So what I want to tell is, sheep are mostly all the sheep are herbivores. And what they are prefer to eating? They are eating grass. And among the instead of this grass, they also the shepherds also provide them a good feed, that is a mixture of
pulses, corn, jowar, oil cakes. So all these things they will provide. But in winter, what happen? It is very outside cold, and we will not provide them. What? We will not provide them. So what happened in this winter season what student they will ships are kept indoors because outside the cold in the winter season there is very cold, so they mostly fed on the leaves, grains and dry fodder दिया जाता है, so they will inside their indoors they will fed on these things and remain healthy also. Now ships are reared in many part of the country for obtaining wool. Students, we know very well, but name of the breed of some ships are reared. They are of some the breed are of very good qualities, and some quality was not that much. You can say that much good. You have seen students that this good quality and some are very coarse quality. So good quality and coarse quality, that one I will tell you. Before this one we will see. So the name of some breeds of ships reared in our country for producing wools are these one. These are some name of the breed. Lohi, Rampur, Buser, Nali, Bhakarwal, Marwadi, Pathanwadi. These are some name of the breed. जैसे आप कहते हैं ना काऊ की ब्रीड होती है, जर्सी, साहिवाल, अमेरिकन, ये क्या है? काऊ की ब्रीड्स है. बफेलो के अगर जैसे मैं कहूँ कि मुर्रा नस्ल, these are breed. So these are the breeds of the which I am explaining here. These are the breeds of sheep. Now this sheep, the quality and texture of fiber obtained from them is indicate in the table. कि उससे जो हमें फाइबर्स, जो फाइबर जिस क्वालिटी का मिलता है वो हमें पता चलता है कि कैसी क्वालिटी का फाइबर. कुछ क्वालिटी का क्या है, फाइबर बहुत सॉफ्ट होता है, कुछ का फाइबर क्या होता है बेटा, थोड़ा सा रफ, जिसको हम बोलते हैं कोर्स. ओके, सो इस तरीके के फाइबर्स हमें मिलते हैं. जैसे उसका फाइबर्स क्या है, थोड़ा सा खुरदरा सा, अगर आप टच करके देखोगे, और कुछ क्या होता है बिल्कुल आप हाथ लगा के देखो तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट सा लगता है. सो देर आर डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फाइबर्स आर ऑब्टेन. कुछ फाइबर्स मोटे भी होते हैं, कुछ फाइबर्स क्या होते हैं, थिन भी होते हैं. सो वी विल सी द डिफरेंट टेक्सचर of the fibers. Now texture and quality, both the quality and texture of the fibers obtained from them also indicate in the table you can see here. Now students, certain जो कुछ ब्रीड होती है जो sheep की, उसमें जो thick coat hair होता है उनकी बॉडी के ऊपर. Why this thick coat hair in their body? It protect them in winter. विंटर में क्या है स्टूडेंट, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम कोल्ड. दैट आई टोल्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो, बिकॉज दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. एंड बट इन दिस समर सीजन स्टूडेंट, दिस समर सीजन what happen, this coat will not, they will not comfortable, so they are removed from the winter. This coat protect, okay, the coat of hair on their body, this one in winter protect, but in summer it is very hot. क्या होती है स्टूडेंट, वेरी हॉट. सो दिस कोट इज़ रिमूव, इस कोट को रिमूव कर देते हैं बाय शेयरिंग मेथड जिसे हम कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द क्वालिटी ऑफ वुल एंड क्वांटिटीज़. क्वालिटी और क्वांटिटीज़ में डिफरेंस देखो. क्वालिटी होती है एक अच्छी नस्ल, जैसे हम कहते हैं कि ये सीड खेत के अंदर, इस सीड को बीजना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. आप ये कपड़ा ख़रीदो, सपोज दिस क्लॉथ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. क्वालिटी में जैसे आप कहते हो सॉफ्ट है, वाटर को मतलब ये हमारे को कंफर्टेबल, विंटर हॉट के अंदर हमें कंफर्टेबल फील होता है इसे. तो क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, मात्रा. जैसे इस बीज को बोने से 5 kg हुए थे, अगर हमने मान लो इस बीज को बोने से 5 kg हमें मिले थे, तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं थी. अगर ये क्वालिटी अच्छी है तो इससे कितना मिल जाएगा, 10 kg. तो ये 10 kg क्या हो गया, क्वांटिटी मतलब मात्रा. 5 से अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी उससे. ओके, नाउ जैसे एक अच्छी क्वालिटी की अच्छी ब्रीड होगी, अगर मान लो मुर्रा नस्ल अच्छी है तो उससे क्वांटिटी, वो भैंस कितना है 20 लीटर्स दूध दे सकती है. बट वो अच्छी ब्रीड की नहीं होगी तो नियर अबाउट
10 to 12 के लीटर दूध ही देती है हमें. So you understood quantity and quality. Now we will see here this breeds of different breeds, students. Now I will tell you that Lohi, this is of good quality wool obtained. Now Rampur Busair, this is brown fleece. We will क्वालिटी ऑफ वुल कैसी होती है, ब्राउन कलर की फ्लीस होती है. ना नाली से जो वुल होती है दैट इज़ कारपेट वुल. ओके. और भाकरवाल फॉर वो वुल वुलन शॉल्स वगैरह बनाने के लिए. और मारवाड़ी की कोर्स, थोड़ा सा क्या होता है कोर्स मीन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रफ आप कह सकते हो ना. रफ मतलब आप ये कह सकते हो थोड़ा सा खुरदरे टाइप का. ओके. एंड पठानवाड़ी फॉर हौजरी वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये इनके स्टेट्स भी दे रखे हैं कि लोही जो ब्रीड है हमारी कहाँ मिलती है, लाइक राजस्थान, पंजाब. रामपुर वाली ब्रीड कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. नाली ब्रीड वी विल फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब. एंड लाइक दिस वन ऑल द नेम्स आर गिवन. Now you understood. So these are the some name of the breed. In exam, they will ask Lohi. Now they will ask Lohi is the breed of which animal? Cow, goat, buffalo, sheep. Okay, like this will they will ask. So we know that Lohi is the breed of sheep. So sheep की breed है Lohi. So we have to at least one we have to revise this one. Now student, what is the next here? This one we have seen some Indian breeds. Now the sheeps, sheep, certain breed of sheep have thick hair on their body which yield good quality and wool in large quantities. As we know, what we have seen there, some qualities and quantities. Qualities of wool obtained is of good quality. So that is of selective breed. किसकी होगी वो? सेलेक्टिव ब्रीड की. ओके. विथ वन पेरेंट बीइंग शीप ऑफ गुड ब्रीड. उसमें से क्या होगा, जो सेलेक्टिव ब्रीड हम लोग ऑब्टेन कर मिलती है हमें, वो कैसे हो सकती है बेटा, जो वन पेरेंट होगा उनमें से, दैट वन पेरेंट शुड बी ऑफ गुड ब्रीड. उनमें से वन शिप इज़ दिस वन शिप इज़ दिस वन. ओके. इन दोनों में से एक जो शिप होगी वो क्या होगी, गुड ब्रीड की होनी चाहिए. देन वी विल गेट, देन ओनली, फिर ही हमें क्या मिलेगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. देन ओनली वी विल गेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वूल. सो दे हैव टोल्ड सेलेक्टिव ब्रीड. तो दो शीप के अंदर से जब दोनों शीप की ब्रीडिंग करेंगे तो उससे जो नेक्स्ट उनका जो शिप का ऑफस्प्रिंग या यू कह सकते हो यंग वन जो आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का कैसे हो सकता है, इन दोनों में से वन शुड बी ऑफ गुड ब्रीड. इन दोनों में से एक ब्रीड क्या होनी चाहिए, मदर और फादर में से एक की ब्रीड अगर अच्छी होगी तो द बेबी दे विल प्रोड्यूस that is have good quantity of wool also they will give, and quality also. Quality and quantity will be good. Now you will see here, once you will see the reared sheep have developed thick. जब एक बार आपने देखा होगा कभी भी sheep के ऊपर एक thin coats आ जाता है, thick growth of hair, thick hair growth start हो जाता है sheep के ऊपर. then what we will see, hair is shaved off for getting wool. उसको suppose this is shape hair, इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे बाल का कोट्स आ जाता है स्टूडेंट ना, इसको क्या करते हैं, रिमूव करा देते हैं, लाइक द बार्बर डूइंग अस, हमें जैसे बार्बर करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस, फाइबर्स इनटू वुल. फाइबर्स को वुल के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है. सो यू विल सी योर मदर ऑल्सो ब्रॉड सम वुल एंड निटिंग स्वेटर्स. योर स्वेटर्स आपने देखा होगा, वीविंग शॉल्स इन द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, लॉन्ग प्रोसेस दिस वन टेक. सो हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूल, दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. वी विल से द नंबर वन स्टेप. नंबर वन स्टेप इज बेटा शेयरिंग. Now first I will tell you what is shearing. Shearing means students, it is that when there is you will see a shape. Now the shape of the fleece of the sheep, what fleece of the sheep is removed. कैसे
रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। जैसे आपके फादर्स डेली शेविंग करते हैं, तो शेविंग करते हैं तो क्या हो गया, हेयर को रिमूव कर दिया अपने स्किन के ऊपर से, तो वो पेन भी नहीं होता उससे। वाई देयर इज़ नॉट पेन, बिकॉज पेन इसलिए नहीं होता कि हमारे आउटर मोस्ट स्किन के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्किन की, वो कैसी होती है स्टूडेंट, डेड होती है। वहाँ पे क्या होती है, डेड स्किन। तो डेड स्किन के साथ इन हेयर्स थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव। सो ये थिन लेयर ऑफ स्किन को निकालेंगे तो आप सोचोगे दर्द होगा। नो, इट इज़ नॉट वेरी पेन। वेरी पेन क्या, बिल्कुल ही पेन नहीं होगा। लाइक हमारे हेयर्स बार कट करते हैं, सो वट वी हैव सीन दैट बार हमारे हेयर को कट करते हैं, शेव ऑफ हेयर्स कर, बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर्स। सो डू वी फील पेन, नो, नेवर, कभी भी नहीं होता। सो क्यों, क्योंकि थिन पतली सी जो डेड लेयर ऑफ स्किन की होती है उसके साथ हेयर्स को रिमूव कर देते हैं, हेयर्स आर रिमूव्ड। सो द फ्लीस ऑफ द शिप along with the thin layer of skin is removed. What we call this process? This process is called student shearing. अब ये शेयरिंग किससे करी जाती है, मशीन से। मशीन कैसी होती है, जैसे बार शेव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी जैसी सिमिलर थोड़ी सी साइज़ बड़े में ये मशीन होती है। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर रिमूविंग द आउटर डेड लेयर ऑफ द फ्लेस along with the skin. So dead layer of the skin along with the fleece of the shape is removed. What we call this one, shearing. Okay, now why it is removed during the summer season? Because summer season very hot weather, and this enables our sheep to survive without their protective coat of hair. So in this season what we have to, this protective coat of hair उनको रिमूव ही करना पड़ता है, अदरवाइज़ उनको सर्वाइव करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आप मीन्स यू कैन सी योर्स ऑन स्टूडेंट, जितना आप कूलर लगा के एसी के नीचे सोते हो, विल यू वेयर इन दैट सीजन दिस, यू कैन वेयर जैकेट्स, कोट्स विच आर मेड अप ऑफ वुलन और विच आर वेरी हॉट इनसाइड, अंदर से बिल्कुल गर्म से लगते महसूस होते हैं। नो, वी कांट वेयर। हमारे को ऐसा लगेगा कि बॉडी के अंदर जलन सी हो रही, एकदम बॉडी में जैसे हमें किसी हीट के पास बैठा दियो, वी विल फील लाइक दैट वन। सो स्टूडेंट्स, this shearing, so what is the first step is shearing. So this shearing does not hurt any sheep, so it will not does not hurt the sheep. It is very easy and shave, like जैसे हमें पेरेंट्स अपनी बेयर्ड शेविंग करते हैं अपनी दाढ़ी वगैरह को बनाने, तो इट इज़ सेम। सो लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड आउटसाइड, अपर मोस्ट स्किन लेयर होती है, डेड होती है। जब आपके फादर्स या आपके एल्डर ब्रदर है जो काफ़ी बड़े हैं, तो दे विल शेव्स द दिस beard, so what will, so remove with the dead skin, so the face will become clean, and same like that we will clean the outer layer of the skin. So we will obtain, what we will obtain, we obtain fleece. Now this is the method. Now after this fleece is removed, student, you will see here, this is the method. This is called, in this figure you will see here. So what this person is doing, this person is शेयरिंग ए शिप। ये देखो शिप यहाँ पे लेटी हुई है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर रखा है ऐसे। एंड दिस फ्लीस, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट फ्लीस। what we call this one, this is called fleece. What we call this one, it is called fleece, sorry. Now this is fleece and this process is called shearing. Now it is removed with a small machine taking in the hand. Now what is the next step? Next step is called student scoring. Scoring means what? When we have removed this fleece, now this fleece have some impurities. Dirt is also there, dirt, grease, oil, some other impurities are present. So what will happen to remove all these things? तो इसके अंदर से जितनी भी डस्ट, फ्लीस या शीप के हेयर को फ्लीस कहते हैं, सो इफ़ यू विल रिमूव दिस फ्लीस, व्हाट हैपन? After removing,
वी विल अप्लाई द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्कोरिंग। नाउ स्कोरिंग में क्या होगा, हम लोग इस टैंक के अंदर उसको साफ करना होता है बेटा। स्कोरिंग में ओनली वी हैव टू क्लीन दिस fleece. Now in this fleece, why we clean? Because to remove dirt, grease and oils present in the fleece and some other maybe impurities present in the fleece. So we will do the scoring. Now you understood scoring. Scoring is done with the help of hand also. हाथ से हम क्या है एक टैंक के अंदर फ्लीस डाल के, so it is manual method. But you will see one more method here is shown, that फ्लीस को here student this method. Now this is also scoring, but here the scoring is done with the help of machine. यहाँ पे क्या है, मशीन से स्कोरिंग हो रही है अपने आप। इससे ये यहाँ से ये वाटर दिख रहा है, इसके ऊपर वाटर डलता जाएगा और ये साफ हो कैसे निकलते जाएंगे इसके अंदर से। सो वी कैन डन स्कोरिंग वी कैन डू इन आवर टैंक ऑल्सो, एंड वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑल्सो. Now we will see students, next is I hope it is clear, scoring. So what I told scoring student, that in scoring what happen, now the skin with the hair is roughly thoroughly what we have to washed, and why we washed, उसको अच्छे तरीके से thoroughly पूरी तरीके से जो शेड स्किन है जिसमें हमें फ्लीस मिला है, what will we have to wash it to remove dirt, grease and all these things. So what we call this process? This process is called scoring. What we call this process student? This process is called scoring. Now पहले scoring इस तरीके से होती है, but now scoring is done with the help of machines. Now see what is the third step, sorting. Sorting में क्या होगा student? You will listen here, that here it is not shown the process of sorting. So what happened, the wool after washing it is dried. वॉश करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं. ओके, आफ्टर ड्राइंग व्हाट हैपन, इसमें एक प्रोसेस वो शो नहीं कर रखा. ओके, क्योंकि इसको बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ड्राइंग. उससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ सॉर्टिंग. आफ्टर स्कोरिंग व्हाट वी विल डू ड्राइंग. ड्राइंग के बाद व्हाट वी विल डू सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज़ व्हाट, लाइक द हेयर्स, द स्किन. यू नो व्हाट आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि स्किन के जो फ्लीस के ऊपर जो शीप के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होती है, वो अलग अलग टेक्सचर की होती है. कहीं पे जैसे ये हेयर्स होंगे वो थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं, कहीं पे बिल्कुल बारीक भी पतले भी हो सकते हैं, कहीं पे ये लंबे छोटे. तो अलग अलग टेक्सचर के हमें डिफरेंट टेक्सचर्स. सो इन हेयर्स को हम सॉर्टिंग मीन्स वी आर सेपरेटिंग. अब इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं स्टूडेंट. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, इसको वॉश करके ड्राई कर लिया. ड्राई करने के बाद वी विल सॉर्ट आउट गुड टेक्सचर, वी विल सेपरेट हेयर. जो डल टेक्सचर है, थोड़ा अच्छी मतलब टेक्सचर नहीं है उनका, प्रॉपर नहीं है, सो उनको हम अलग. सो डिफरेंट टेक्सचर के हम सेपरेट कर देते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग. हमने सेपरेट कर दिए, छोटे इतने थे, बड़े इतने वाले थे, एंड थिन, thick, okay, different texture. Now have you seen, you are wearing sweater in the in the winter season. Now you have seen some fluffy स्वेटर के बाहर की साइड यू सी स्टूडेंट सम बॉल्स की तरह छोटे छोटे बॉल सी दिखाई देती है आपको, जिसको हम बोलते हैं बूर्स. व्हाट वी कॉल देम बूर्स. सो आप उनको हेयर्स को ऐसे निकालते भी रहते हो, जिससे स्वेटर का मीन्स क्वालिटी घट जाती है उसकी. तो बूट्स को भी हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए अलग से. आफ्टर दिस वन डिफरेंट टेक्सचर को सेपरेट करने के बाद व्हाट विल हैव टू डू वी हैव टू, स्वेटर्स के ऊपर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आ जाते हैं, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, बूर्स. इनको हमें रिमूव करना होता है. सो इफ़ वी विल नॉट सेपरेट the texture of the wool, that what happen, then some sweaters will not have bows, do you know, and but some sweaters when you wear, they will, after some wearing some time, you will find bows appears. So why? Because they are not separating, वो separate नहीं करते अलग अलग टेक्सचर को, सारे इकट्ठे ही कर देते हैं. सो जो लेस क्वालिटी वाला टेक्सचर है उसको अलग कर देते हैं, तो जिसकी थिकनेस, सॉफ्टनेस
अलग हो उनको सेपरेट कर देते हैं। अगर सेपरेट नहीं कर देते तो स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे फ्लपी से फाइबर्स दिखने लग जाते हैं हमें। नाउ व्हाट हैपन, इन बूट्स को हम अगेन व्हाट वी आर डूइंग, अगेन वी आर sorting, again we are sorting this boards. Now sorting means what I told, here it is scoring. Now this scored again, sorting से पहले मैंने आपको scoring बताया था ना, तो again in fluffy boards जो ये आ जाते हैं, small fluffy called boards picked out from the hairs. Now इन hairs के अंदर से इसको fluffy fibers को pick करना होता है, ठीक है। these are the same boards which sometime appear on your sweater, ये वही सेम बोर्ड्स होते हैं बेटा। तो जब इसको हमने सॉर्टिंग कर दिया, सॉर्टिंग करने के बाद ये स्मॉल फ्लपी फाइबर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं ना फाइबर्स के, इसके फ्लीस के, तो ऐसे ही उसके ऊपर और स्मॉल फ्लपी फाइबर्स दिखते हैं। इन फ्लपी फाइबर्स को भी हमें अगेन क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। एंड सो जब हम इनको सेपरेट कर देते हैं, फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर इनको अगेन वी विल वॉश इन द टैंक। जब फ्लपी फाइबर्स को हम सेपरेट कर देते हैं, अगेन वी विल डू द स्कोरिंग, जिसको हम मतलब साफ़ करते हैं। एंड अगेन दे आर ड्राइड, फिर उनको फिर से सुखाते हैं। नाउ दिस वूल इज़ रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स, फिर उनको हम फाइबर्स, पतले पतले फाइबर्स में सेपरेट हो जाती है, ड्रॉन इनटू। अब इनको फाइबर्स में हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कैसे? नाउ द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। सबसे पहले अब ये फाइबर्स होते हैं ना बेटा, सी दिस नेचुरल कलर्स, यू विल सी द कलर ऑफ द शेप मे बी ब्लैक ऑल्सो, वाइट ऑल्सो, like creamy color also, but if you want to, the fleece of the sheep and goat is black, brown, white, इसी कलर की होती है। but we want to wear green color sweater, okay, green, pink, orange, means other color, violet, so how can we wear? So what will happen, these the fibers can be dye, उनको कलर करते हैं यहाँ पे वेरियस कलर्स के अंदर, अलग अलग फाइबर्स को हम क्या स्टूडेंट है, डाई करते हैं, उसके ऊपर कलर उनके ऊपर करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमें स्वेटर्स में, डिफरेंट शॉल, स्वेटर्स, आपके गारमेंट्स वगैरह बन जाती है। ना यू विल सी द फाइबर्स। फिर दिस स्टेप में हमने क्या देखा, दिस स्टेप में हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि ड्राई करने के फाइबर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइबर्स को केवल डाई कर रहे हैं, क्योंकि फाइबर्स हमें 3 ही कलर्स के होते हैं। वी वांट ऑल दिस कलर्स आल्सो, अदर कलर्स आल्सो, दैट वाइज दे आर डाइड। डाई करने के बाद उनको स्ट्रेट किया जाता है, ओके, रोल किया जाता है इनटू यार्न बनाया गया। सो लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टन फाइबर्स आर स्पन एंड वुलन इनटू वुलन क्लोथ्स। जो छोटे फाइबर्स मिलेंगे बेटा उनसे वुलन क्लोथ्स। अब जो ये फाइबर्स मिलेंगे अलग अलग कलर्स के, इनको हम स्ट्रेट करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेट करने के बाद कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न, उसको किस में, उसके अंदर से अच्छी तरीके से कॉम्ड एंड रोल, अच्छी तरीके से रोल करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम उसको, यार्न के अंदर, ओके। जब ये यार्न के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, स्ट्रेट करने के बाद उसको यार्न में कन्वर्ट कर देंगे। अब यार्न में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट व्हाट यू विल से, सम आर लॉन्ग फाइबर्स एंड सम आर शॉर्ट फाइबर्स। लॉन्ग फाइबर से व्हाट वी विल मेड, लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स। लॉन्ग फाइबर्स किसको, उसका किस में यार्न में कन्वर्ट करते हैं, वुल में, ताकि उसका क्या यूज़ करें हम, पर्पस ऑफ मेकिंग स्वेटर्स। और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको स्पन कर देते हैं, बुनने लग जाते हैं, एंड उससे क्या बनाते हैं बेटा, वुलन क्लोथ्स। जो आपने वुलन क्लोथ्स देखा है ना, अपने स्मॉल बेबीज़ के भी होते हैं, एल्डर पर्सन के भी वुलन कोट डालते हैं। दीज आर नॉट स्वेटर, वुलन कोट्स। सो कोट किससे, कोट के लिए शॉर्ट फाइबर्स यूज़ होते हैं। सो वंस अगेन आई टोल्ड यू व्हाट आर द स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप इज स्टूडेंट शेयरिंग। साथ साथ में हम रिवाइज कर लेते हैं, देन you will not do any ratta, okay. So first step what we have taken student, first step is शेयरिंग में क्या था, शीप की ये स्किन को सेपरेट कर दिया, ओके। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा बेटा, स्कोरिंग। इसको हमने क्या कर दिया, वॉश कर दिया अच्छे तरीके से, ताकि ऑयल, डर्ट, ग्रीस सब रिमूव हो जाए,
ओके। थर्ड फिर हमने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद फाइबर से वुल में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके जो स्किन से हमने जो फाइबर्स निकाले हैं वो फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं और डिफरेंट टेक्सचर के, जो पतला है या कोई फाइबर मोटा है, उनको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, इनके ऊपर स्मॉल फ्लपी फाइबर्स आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बूर्स। सो ये भी रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद फिर से उसको साफ अच्छी तरीके से टैंक के अंदर धोया जाता है और फिर ड्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या स्टूडेंट, उसको हम क्या करते हैं, डाई करते हैं, कलर करते हैं उसके बाद, ताकि हमें ओनली ये 3 कलर्स की ही कोई कपड़े ना पहने पड़े वुलन, अदर कलर्स के भी वुलन क्लॉथ्स वी कैन वियर। सो उसको क्या करते हैं, फाइबर्स को डाई कलर करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, फाइबर्स को स्ट्रेट करते हैं कॉम से, रोलर से, ओके, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न में। ना यू सी लॉन्गर फाइबर से स्वेटर बनाई जाती है और शॉर्टर फाइबर से वुलन क्लॉथ्स। अंडरस्टूड द सो हियर रोलिंग टू yarn is doing. They are showing how the rolling of the yarn is they are doing. They are showing with the help of machine. Now we have seen that they are showing with the help of machine also. Now you see student here that the process of fiber into wool can be represent, कैसे हमने represent कर दिया, शेयरिंग। फ्लीस हमने रिमूव कर दिया, फ्लीस या कह दो आप हेयर जो शेप से हमने रिमूव कर दिया, वो क्या हो गया, शेयरिंग। उसको हमने धो लिया साफ, ग्रीस वगैरह निकालने के लिए, स्कोरिंग। फिर उसके जो टेक्सचर्स, फाइबर का जो टेक्सचर है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, थिक थिन, इस तरीके से उनको हमने सेपरेट कर दिया। ओके, फिर फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं, उसको सेपरेट कर दिया, डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फाइबर, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट को हमने सेपरेट कर दिया। फिर उसमें से क्लीन करके बूर्स निकाले जाते हैं। बूर्स निकालने के बाद फिर उसको क्या करेंगे बेटा, डाई करेंगे और देन रोल करेंगे। रोलिंग करने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। यार्न से अब उसमें से कुछ जो लॉन्ग होंगे उसको स्वेटर बना लेंगे और जो शॉर्ट होंगे वो वुलन क्या बना लेंगे, उसे वुलन क्लोथ्स। अंडरस्टूड। Now what is next, he has given student here that occupational hazards. See what happen when there is any we are doing any work students, but some work are very difficult and some are easy also. In some work you will not suffer, like in coals, the persons who are doing work they will suffer from some disease. So same in wool industries also. So what happened, wool industry, this is very very important mean for livelihoods, मीन्स एक रोज़गार बना हुआ है सभी के लिए अपने जीवन यापन के लिए। बट इन आवर कंट्री यू सी सम शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की at some time because they will suffer from their bacterium disease. Okay, so this is a type of name of the disease is anthrax and it is caused by bacterium. And here what will happen, this is a fatal blood disease, their blood become infected because of the presence of this bacterium that is called anthrax. So this disease is very very harmful. Some of the persons they will die also because of this one. So दिस इज़ अ वेरी सॉर्टर डिजीज़. सो ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर डिजीज़. जितने भी ब्लड डिजीज़ होते हैं बेटा उनको हम सॉर्टर डिजीज़ कहते हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड डिजीज़. द डिजीज़ ब्लड इन्फेक्शन इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरियम. Now you will see here that so occupational hazards are also there. So some person they are doing their job very risky job. This one is very risky. So students, that's why your parents are saying that if you will become very educated and you will not be able to not you have to not to do such type of jobs. If you become means clear your entrance exams and others exams, and if you will study your concepts will be clear during your studying, so then you will become a good means your intelligence will clear some exams and you will get good jobs also. Now we will see students, one question is here given that what is the main, what is given here that
when we have seen this one, students, कि Bujo is asking why it is hurt become when someone pull his hair. उसके अपने हेयर को कोई पुल करता है, बाल खींचता है, what will happen? We hurt. But when he goes for a haircut, then he does not feel any pain. What is the reason? Because hair, student, hair किससे बने होते हैं? Hair is made up of protein. Hair किससे बने होते हैं, student? Made up of protein, and they are made up of protein which are dead cells. ये कैसे cells होते हैं, students? Which are dead cells. So these are the dead cells, and when we pull these dead cells, hair is made up of protein which are dead cells, and when the dead cells are pulled, then when the dead cells are cut, then we will not hurt. But when someone pulls hair, what will happen? When they pulls the hair, then scalp, we pulled from the scalp, because when they pull the hair, they are inside our scalp, okay. scalp समझते हो ना, हमारे स्किन के अंदर, सर के अंदर जो मतलब बाल क्या है, हमारे स्कैल्प के अंदर डीप सीटेड होते हैं. सो स्कैल्प, द लिविंग सेल्स आर ऑल्सो बीइंग पुल्ड अलोंग. तो हमारे हेयर्स का है, हमारे स्कैल्प के अंदर है, एंड दे आर ऑल्सो बीइंग. सो व्हेन what we have seen, when the hairs are cut from when we cut the hairs, then we will not feel any pain. Why? Because hair is made up of protein and which are dead cells. But what will happen? But when it is pulled from scalp, when we pull it from the scalp, when we pull the hair from the scalp, then what happens, student? The living cells are also being pulled. Living cells are also being pulled. तो क्या है, क्योंकि हेयर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स? व्हेन इट इज़ पुल्ड फ्रॉम स्कैल्प, जब हमारे स्कैल्प्स के अंदर से जब हेयर को पुल करेंगे, कोई हमारे बालों को से खींचता है, सो दे आर पुल्ड फ्रॉम द स्कैल्प, एंड वी नो द देयर आर लिविंग सेल्स देयर. So what happened? Then we feel pain there. Now you will see, students, one more thing it is given here. Bojo is wondering why a cotton garments, what happened? Why this Bojo is asking why a cotton garment cannot keep us warm in winter and woolen sweaters does. See, why woolen sweater does and cotton not keep us? This cotton is, what happened? Woolen sweaters keep us warm, but cotton does not. Cotton garments cannot keep us warm. What is the reason here? Because woolen sweaters, what happened? This woolen sweaters traps, what they will traps air in between. So in woolen sweater there are small gaps between them, so the air is trapped in between these gaps. And but in cotton, but student, in cotton what happened? But in cotton what happened? Cotton allows the air to pass through it. Now you understood. So this woolen sweater keeps us warm, but this cotton garments cannot, because cotton garments allows कॉटन गारमेंट्स क्या करते हैं? कॉटन अलाउज एयर टू पास थ्रू इट, एयर को उसके अंदर से पास होने देती है. बट व्हाट हैपन? वुलन स्वेटर्स ट्रैप्स एयर इन बिटवीन देम, ये एयर को ट्रैप करे रखती है, बिकॉज वुलन स्वेटर्स में बहुत सारे गैप्स होते हैं. यहाँ पे देखो एयर के लिए. सो वुलन स्वेटर्स गैप्स जो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे व्हाट हैपन?
it traps the air, and we know that air is a poor conductor of heat. That is the reason. Now students, we will do others topic, you can say the next topic, activity, all these things. uh, this silk topic we will start from the next video. So watch this video carefully and try to understood the concept. So we are, what we are doing, we are understanding the concept, not any rectification. So thanks students for watching my videos.